Hello students, today I am taking a lecture of human values, which is the course of BTech second year in AKTU. Okay, in this subject today's topic is what is the activity of I related. Okay, first of all you should know about your body, about human being. We can divide human being in two parts, body and I. What is body and what is I? Body is the physical structure of human being. You know that there are four orders in nature: animal order, plant order, material order and human order. Okay, as an engineering student you can learn human being as a human value subject. If you consider microcontroller and embedded system, then you can easily identify what is body and what is I. Then you can easily identify human, what is human being. Animal order, plant order and material order are related, are just like embedded system, means which are installed. They can do only that things. They cannot deviate from their installed program. Plants can only generate fruits, leaves, etc. and they cannot do anything else. Similarly, animals can do such type of workings. Animals can do only such type of operations which are embedded in their mind, such as they can eat, they can walk, they can learn at a very little extent. बहुत ही कम वो सीख सकते हैं, but this learning is very limited. This learning property of animals are very limited. This learning is not based on processing. They cannot generate their own mind, their own thinking from this learning. Only they can learn, or they are forced to learn in the fear of not fulfilling their requirement. Okay, now come on, in human beings are just like microcontroller. They can perform many tasks. They can perform many type of tasks based on their learning processes. Okay, you have learned that what is human being and what are remaining three orders. Okay, now come to the point, body and I. There are two parts in human being, body and I. There are some powers related to I, such as desire, thought, expectations. By using desire power of I, human being can form a image based on their based on their requirement. They can perform its image with the help of the desire power. This imaging is known also as चित्रण. Okay, मतलब जो भी उसको कोई भी अपनी डिज़ायर पूरी करनी हो, इच्छा, डिज़ायर मीन्स इच्छा, जो भी इच्छा पूरी करनी होगी, वो पहली बात वो डिज़ायर कहाँ, बॉडी का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, आई का पार्ट है. विद द हेल्प ऑफ दिस डिज़ायर ह्यूमन बीइंग फॉर्म अ इमेज टू फुलफिल दैट डिज़ायर. अपने इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक वो चित्र बनाता है, एक इमेज क्रिएट करता है या एक स्टोरी तैयार करता है. चित्र का मतलब ड्राइंग ही नहीं है यहाँ पर इमेजिंग, इसीलिए इसका हिंदी वर्ड ज़्यादा सुटेबल है. इमेजिंग इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द डिज़ायर पर्पज. इट इज़ चित्रण हिंदी का शब्द ही इसको पूरा तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है. चित्रण का मतलब होता है, चित्रण का मतलब चित्र नहीं है. चित्रण का मतलब एक तरह से आप जो भी आपकी वांट है, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए जो भी दिमाग सोचता है, उसको उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो भी दिमाग जहाँ जहाँ अपने घोड़े दौड़ाता है, जिस तरह से, वो सारा कुछ क्या बोला जाएगा, चित्रण, है ना. कि जैसे कि यू हैव टू बिकम ए
गुड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एटसेट्रा। तो उसके लिए आप जो भी सोचोगे दैट इज चित्रण, ये इमेजिंग है कि हम कैसा होगा, जो भी हमारी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए जो भी थिंकिंग कर रहा है, जो भी इमेज बना रहा है दिमाग, दैट इज कॉल्ड एज चित्रण, या इसको बोल सकते हैं हम इमेजिंग, बट चित्रण इज सुटेबल। नेक्स्ट पावर ऑफ आई इज थॉट। थॉट मीन्स जो सोचने की जो शक्ति है, इच्छा और सोचने की शक्ति, थॉट है ना। इट इज एंड द एक्टिविटी ऑफ थॉट इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मीन्स हिंदी में है उसको विश्लेषण, एनालाइज करना। जैसे कि कोई भी दो चीज दिया गया, कोई भी दो ऑप्शन चूज करना हुआ ह्यूमन बीइंग को, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो थॉट प्रोसेस में जाएगा, अपने थॉट पावर को यूज करेगा आई, और उसको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, एनालाइज करेगा कि कौन सा बेटर होगा, कौन सा हार्मफुल है ना, एटसेट्रा। कई सारी चीजों को क्या करता है, एनालाइज करता है। तो ये बॉडी का पार्ट नहीं है, बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, किसकी एक्टिविटी है, आई की एक्टिविटी है, थॉट। ओके, नेक्स्ट पावर ऑफ आई इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन माने आशा करना, है ना, सेलेक्ट करना या टेस्टिंग। अब यहाँ पे देखो सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग, जो हिंदी का जो इंग्लिश का वर्ड है, ये भी सुटेबल नहीं है इसको फुलफिल करने के लिए। ये हिंदी में जो दिया है चाहना या आस्वादन। अब आस्वादन, जब देखो यहाँ पर अगर टेस्टिंग की बात करेंगे, टेस्ट का मतलब ये होता है कोई भी हम फूड आइटम को खाएं तो टेस्ट बता दें कि वो मीठा है, खट्टा है, जो भी है, लेकिन इट इज नॉट अबाउट दैट। ओके, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ, हमारी इच्छा क्या है, हमारी चाहना क्या है। यहाँ पे इच्छा तो डिजायर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन माने हमारी आशा क्या है। मतलब किसी से, किसी भी ह्यूमन बीइंग, अनदर ह्यूमन बीइंग से, या अपने फ्रेंड से, किसी से भी, या इवन मटेरियल ऑर्डर से, एनिमल ऑर्डर से, प्लांट ऑर्डर से, किसी से हमको क्या एक्सपेक्टेशन। हमने गुलाब का पौधा लगाया है तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसमें गुलाब के फूल लगे, यही तो है। ये तो हमारे फिक्स एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो एम्बेडेड सिस्टम टाइप का है, वो एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगा, इसलिए हम उसको एम्बेडेड ही बोलेंगे, क्योंकि वो क्या, जो भी एनिमल ऑर्डर है, मटेरियल ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर है, वो स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे, वो भी क्या होगी, लिमिटेड ही होगी। लेकिन अदर ह्यूमन बीइंग से हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर हम किसी फ्रेंड्स को अगर एक्सपेक्ट करना चाहें तो तुम जरूर ये सोचोगे कि मेरी वो मदद करेगा, है मेरी जरूरत पे काम आएगा, तो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन इज द एक्टिविटी ऑफ एक्सपेक्टेशन पावर ऑफ आई। ओके, एंड दूसरा इसका दिया है टेस्टिंग, आस्वादन। मतलब हम कई बार एक्सपेक्टेशन करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं कोई उतरता, तो क्या हुआ, दिस इज द टेस्टिंग। हमको इसका मतलब समझ में आया कि हमारी जो वांट थी, हमारी जो सेलेक्टिंग, हमारी जो चाहना थी, जो हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो जो ये फीलिंग है ना, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पा रही है या हो गई है, जो उसके बाद एक्सपेक्टेशन पूरी होने के बाद जो तुमको खुशी होगी, है ना, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने के बाद जो तुमको सैडनेस फील होगा, वगैरह कई सारे जो भी फीलिंग आ रही है, जो भी उस वही टेस्टिंग है। ठीक है, दिस इज आस्वादन। तो ये किसकी एक्टिविटी है, आई की एक्टिविटी है, और वो एक्सपेक्टेशन पावर से आ रही है। क्लियर। अब आते हैं बॉडी की एक्टिविटी क्या है। बॉडी एक्चुअली क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ आउटर वर्ल्ड, है ना, ये आउटसाइड द वर्ल्ड का पार्ट है ये। जबकि आई क्या है, इनसाइड द ह्यूमन बीइंग का पार्ट है। ह्यूमन बीइंग जो बॉडी है उसके अंदर आई है। ठीक है, अब आई को कोई ऐसा थिंग नहीं है, ऐसा कोई फिजिकल उसका शेप नहीं है जिसको हम उसको टच कर सकें। पहली बात, अभी तक का जो रिसर्च है, आई का कोई फिजिकल शेप अभी तक नहीं समझ में आया है जिसको हम टच कर सकें। तो आई क्या है, थिंकिंग। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा कि शिकागो में विवेकानंद ने रिपोर्टर से पूछा था कि हु आर यू, तो रिपोर्टर्स ने कहा था कि आई एम, माई नेम इज दिस एंड दिस एटसेट्रा। तो उसके जवाब में विवेकानंद ने कहा था कि दिस नेम इज योर बॉडी, दिस इज द योर बॉडी इज नेम। तो यही चीज है कि आई क्या है, आई हमारा नाम नहीं है आई, है ना, ये बॉडी का नेम है। तो आई इज अनदर थिंग विच इज इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। ओके, और बॉडी क्या, पार्ट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। अब ये जो सेंसेशंस हैं, है ना, ये जो 5 टाइप का सेंसेशन है ना,
तो वो फील करता है क्या, एक्टिविटी ऑफ आई को फील करता है, ठीक है। या आउटसाइड वर्ल्ड, अब ये सेंसेशन को कौन फील करेगा, कौन रिसीव करेगा। आई तो आई की पावर क्या है, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, और उसकी एक्टिविटी समझ गए। तो इस एक्टिविटी को फील कौन करेगा, ठीक है, इस एक्टिविटी को फील करेगा बॉडी पार्ट, ठीक है। अब बॉडी पार्ट ने फील किया, उसके बाद उसको सेंस करने के बाद फिर से आई में उसका इनपुट दिया जाएगा, तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। बॉडी पार्ट की हेल्प से सेंसेशन फील होता है, और सेंसेशन क्या है, सेंसेशन इज द पार्ट ऑफ आई, है ना। सेंसेशन क्या, एक तरह सिग्नल समझ सकते हो। सेंसेशन क्या है, सिग्नल है, और सिग्नल कहाँ से आ रहा है, आई से आ रहा है। और सेंसेशन क्या है, तुम्हारा एक वायर सिस्टम समझ सकते हो, है ना, बस सिस्टम है, जिसके थ्रू वो आई की फीलिंग्स, आई के जो भी इनपुट आ रहा है वो आएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट सिग्नल थ्रू सेंसेशन बॉडी परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड टास्क। ओके, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, and these are the activities related to eye. Okay, let us discuss the activity of eye. The activity of eye is two types: from outside to inside and from inside to outside. First of all, we will discuss from outside to inside. From outside, what is outside? Outside means body, human being का outside body to inside, that is eye. What are the activities that perform by eye? Okay, from outside and from outside to outside, ये जो ट्रांसफर है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड, वो किसके थ्रू होता है, सेंसेशन के थ्रू होता है। सेंसेशन, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेशंस, यू नो। ओके, अब इसमें देखो कई सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें एक फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड समझने के लिए एक एग्जांपल है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो किसी एक रिच पर्सन को देखता है जिसके पास कार है, बंगला है, एटसेट्रा, सारे उसके पास फैसिलिटीज हैं, सारी तरह की फैसिलिटीज है। तो उसको देख करके वो इंस्पायर होता है कि एक दिन हमको भी उसी तरह से बनना है, वो सारी फैसिलिटीज मुझे भी अचीव करनी है। तो ये तो हुआ जो सेंसेशन आया, वो सेंसेशन किसके थ्रू हुआ, आइज के थ्रू हुआ, है ना। वो आइज के थ्रू देखा कि ये फैसिलिटीज चाहिए मुझे। अब वो जो भी सेंसेशन है वो कहाँ पहुंचा, आई के पास है। अब आई अकॉर्डिंगली अपनी पावर से उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डिजायर करेगा। सबसे पहला उसका काम क्या होगा, डिजायर, ठीक है। अब डिजायर क्या करेगा, डिजायर ये है कि ही विल डिसाइड आई हैव टू बिकम ए मिलियनियर, आई हैव टू बिकम ए रिच पर्सन, ठीक है। वो डिजायर करेगा, उसकी इससे क्या होगा, उसे इमेजिंग, उसका चित्रण बनाएगा वो, ठीक है, कि मुझे एक दिन एक कार चाहिए है, एक बंगला चाहिए, एटसेट्रा, कई सारे नौकर चाहिए। इस तरह से उसको क्या होगा, ये डिजायर में आएगा। अब सेकंड आता है उसके बाद थॉट, है ना। अब वो सोचना शुरू करेगा कि इस डिजायर को कैसे पूरा किया जाए। फिर लास्ट में क्या है, एक्सपेक्टेशन, उसकी टेस्टिंग होगी, और भी कई सारे टास्क से परफॉर्म करने होंगे तो आई के, तो ये सब सारे पॉइंट उसी से हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन, सेलेक्टिंग, टेस्टिंग वगैरह। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा टास्क क्या है, फ्रॉम इनसाइड। फ्रॉम इनसाइड, दैट इज आई टू बॉडी। अब इनसाइड जो भी थिंकिंग है, जो भी हमारी जो पावर है आई की, उसके थ्रू वो ह्यूमन बीइंग एक सेंसेशन जनरेट करता है कि आई हैव टू बिकम ए रिच पर्सन, ठीक है, विदाउट सीइंग एनी आउटर वर्ल्ड, मतलब बाहर की दुनिया को देखने के बिना ही अपने से ही वो इंस्पायर होकर के, है ना, खुद अचीव करना चाहता है कोई भी एक अपना एक गोल, ठीक है। और उसमें देखो, अगर अंदर से कुछ भी अगर इमेजिनेशन आ रही है तो सीधी सी बात है, इमेजिनेशन के लिए कोई न कोई ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। विदाउट एग्जिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट के
कोई इमेजिन नहीं कर सकता, वो तो अलग है। तो यहाँ पर जब ह्यूमन बीइंग से बाई सेल्फ, मतलब बिना किसी को देखे, है ना, वो अपने से एक डिजायर करता है कि हैव टू बिकम ए रिच पर्सन, ठीक है, तब वो जो भी इंस्पिरेशन है वो आई से आया, और उस इंस्पिरेशन को पूरा करने के लिए वो जरूरी जो भी वर्किंग होगी वो थ्रू बॉडी को इंडिकेशन देगा। किसके थ्रू हेल्प इंडिकेशन देगा? सेंसेशंस, हमारे 5 ऑर्गन के थ्रू ही वो सारे टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस टू फुलफिलिंग द एक्टिविटी ऑफ आई विद बॉडी। एक्चुअली जो भी परफॉर्म है, एक्चुअली जो बॉडी परफॉर्म करती है, एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग जो भी परफॉर्म करता है वो विद द हेल्प ऑफ बॉडी ही करता है, ठीक है। लेकिन बॉडी का परफॉर्मेंस जो भी होगा अकॉर्डिंग टू आई होता है। आई डिजायर करेगा, अकॉर्डिंगली बॉडी विल परफॉर्म। आई चित्रण करेगा, जो भी इमेजिंग करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही इसको परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड है, को रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो फ्रॉम बॉडी टू आई भी हो सकता है और फ्रॉम आई टू बॉडी भी हो सकता है। दिट्स ऑल अबाउट।